आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। अब दूसरा, प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए, हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे, फिर उसके बाद में जो कुछ होता। इसीलिए आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ Honorable Leader of the Opposition. Honorable Chairman, I rise today to extend heartiest felicitation on my own behalf and on behalf of all the opposition members on your assuming the august office of Chairman Rajya Sabha. While I had already congratulated you on election as Vice President of India, I again take this opportunity to reiterate the same on the floor of the House. At the threshold, I wish to re-emphasize the critical importance of the office of the Chairman, Rajya Sabha, which the Constituent Assembly had intended. Chairman, sir, on your rest the heavy responsibility, smooth conduct of the proceedings of the August Council of States, which goes a long way in maintaining the dignity and pivotal relevance of the House. In this context, I consider it apt to quote the following sage words of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, which in a different way our Deputy Chairman has spoken, but this is a relevant portion I am reading from Radhakrishnan's speech. So the first Vice President and Chairman of Rajya Sabha, during his acceptance speech on 16th May 1952, I belong to no party. Why I am saying? Because many people claimed that you belong to their party. So I belong to no party, and that means I belong to every party in this House. Yes. It shall be my endeavor to uphold the traditions, the highest traditions of the parliamentary democracy, and act towards every party with fairness and impartiality, with ill will to none and goodwill to all. A democracy is likely to degenerate into a tyranny if it does not allow the opposition groups to criticize fairly, freely, and frankly the policies of the government. This is Sarvepalli Radhakrishnan's speech. So I am quoting this, and this is the occasion to remind all of us in these circumstances. Sir, the valuable observations were made by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan way back in 1952
are still very relevant and pertinent. Sir, incidentally, you have not only assumed the same office of Dr. Radhakrishnan, but also share his name, Radhakrishnan जी. तो आप तो राधाकृष्णन जी के हमनाम हैं. हम आशा करते हैं कि आप उनके हमख्याल भी होंगे. So, Chairman sir, I wish to draw your kind attention to an interesting fact, which is that Sri C.K. Kuppaswamy, मैं और एक बार पढ़ता हूँ कि Sri C.K. Kuppaswamy, your uncle has been a member of Indian National Congress and elected to Lok Sabha thrice from Coimbatore, which had been your parliamentary constituency now. Honorable Chairman, Indian National Congress staunchly stands by constitutional values and time-honored parliamentary traditions and structured debates and smooth conduct of proceedings of the House. Hence, sir, kindly be assured of our cooperation with you in the conduct of the proceedings of the House. Fair and impartial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire House, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. Please, आप बैठे please, आप बैठे please, आप बैठ. Sir, I will look into it. I will look into it. Sir. I will look into it. Please, आप बैठिए. Chairman, Please, आप बैठिए. Rajya Sabha, I look into it. of Please, the आप entire बैठिए. House belongs as much to the opposition as to the government. Please, I was आप बैठिए. I look into it. I was disheartened Please, that आप the बैठिए. House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. It is our fond hope, rather we are confident that you will take care of the entire sections of the House. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. Sir, मैं लास्ट में ये कहूँगा, सभापति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है. कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें
आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर जी, देखेंगे आप तो बैठिए, खतरा है look at ज्यादा। it। आप अगर बैठिए। इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। और दूसरा कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे फिर उसके बाद में जो कुछ होता। इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी, सबको धन्यवाद। किरण रिजिजू जी। It is a very solemn occasion, and Honorable Leader of Opposition has made his customary remarks to felicitate the Honorable Chairman. Honorable Prime Minister has made very dignified remarks as part of the felicitation event. What I want to make a very specific point is why Honorable Leader of Opposition should refer to a case which was not necessary to be raised at this moment. Number one. Now, अगर मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए जी, आप बैठिए। ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। Sorry sir, this is a solemn occasion. My appeal is, please don't refer to anything which is not necessary on this solemn occasion. Leader of the House. इम्पोर्टेंट, आपका स्वागत हो रहा है, सारा सदन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाएं, ये आपकी पीठ का अपमान है इस सदन में। No, not at all. Now, leader of the house. सभापति जी, वैसे आपके सम्मान में जो मुझे वक्तव्य देना है वो सभी
वक्ताओं के पश्चात अंत में देने का है, लेकिन मैं बीच में सिर्फ इतना इंटरवीन करना चाहता हूं कि हम ये जो बहुत ही पायस और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगें फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं है। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा, लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज ये बहुत ही खुशी का अवसर है और दिन है कि आपने सभापति के रूप में, आज पहला दिन आपका है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके जीवन के बारे में और आपका योगदान जो प्रजातंत्र के लिए और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए और देश के लिए, समाज के लिए रहा है, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अपने वक्तव्य में कहा। और उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे उपसभापति जी ने भी बहुत सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का वृतांत देते हुए गहराई में प्रजातंत्र में क्या योगदान हुआ है संसद के अंदर, और साथ में आपके माध्यम से और आपके द्वारा जो सार्वजनिक जीवन में आपने कार्य किया उसकी चर्चा की। और उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने सबने मिलकर के आपके जीवन के बारे में एक वृतांत यहाँ रखा और साथ ही साथ सबने शुभकामनाएं भी दी कि आपके नेतृत्व में, आपके अध्यक्षता में यह हाउस प्रजातांत्रिक तरीके से आगे चलेगा। मैं कुछ जोड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध लंबे समय का है, सार्वजनिक जीवन में भी और पार्टी के रूप में भी। खड़गे साहब कह रहे थे कि आप कांग्रेस के घराने से आते हैं और उस तरीके से आपने उस विषय को ध्यान में रखना है, लेकिन मैं उसमें से जो देखता हूं वो ये देखता हूं कि आपने विरासत में मिली चीजों के साथ साथ क्या यथार्थ है और क्या सच्चाई है और हमने अपना रास्ता कैसे चुनना है, ये आपने अपने जीवन में देखा है और इसको आपने चरितार्थ किया। ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप कांग्रेस के घराने से आते थे और आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा आपने ज्वाइन की। जब ज्वाइन की तो आपके परिवार में आपके बड़ों ने
आपसे तकरीर की, आपसे आर्ग्यूमेंट किया कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, यहां मत जाओ, ये जाना उचित नहीं है, यहां तक ये भी कह दिया कि ये गैर राष्ट्रवादी है। और आपका जवाब परिवार को था कि मैंने उनको देखा है, परखा है, साथ काम किया है, मुझे वह राष्ट्रवादी ही है और सही राष्ट्रवादी है, ऐसा आपके मन में है। ये मैं इसलिए उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि आप किसी बायस से दबे नहीं, आप किसी प्रेशर में नहीं आए, आप अपने बुजुर्गों के, बड़ों के दबाव में नहीं आए, लेकिन स्वचेतना से, स्वसोच से आपने अपने जीवन के विचारधारा की रास्ता तय किया। यह आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है और यही बताता है कि आपने किस तरीके से सामाजिक जीवन किया। ये वही शख्स कर सकता है जो अपने बुद्धि से सोचकर, अपने आसपास के वातावरण को समझकर, उचित क्या है उसको समझकर और दबाव में ना आकर के अपने जीवन का फैसला करता है, वह हमने देखा है। आपको परिवार से बहुत अच्छे संस्कार मिले, किसान परिवार से आप थे, आपका सारा जीवन सामाजिक कामों में गया। आप राजनीति में जरूर रहे और राजनीतिक दृष्टि से आपने जरूर काम किया। यू वर इन द पॉलिटिकल फील्ड एंड यू डिड लॉट इन द पॉलिटिकल फील्ड, बट आपकी आत्मा और आपके कार्य करने का ढंग, उसमें समाज के प्रति समर्पण हमेशा दिखता रहा। इसलिए समाज के प्रति आपका समर्पण सबसे ज्यादा रहा, यह भी हम सबको मालूम है। और एक जिसे कहा जाए कि पाक जीवन, साफ सुथरा जीवन, बेदाग जीवन। 2 बार आप लोकसभा के सदस्य रहे, स्टैंडिंग कमेटी में आप टेक्सटाइल के सदस्य रहे, कंसल्टेटिव कमेटी में आप फाइनेंस के सदस्य रहे। और देखिए आपकी लगन, आपकी तड़प कुछ बदलने की, वह इस बात से सूचित होती है कि जब ये कॉयर बोर्ड की आपको चेयरमैनशिप मिली तो आपने कॉयर बोर्ड को, जो लॉस में चल रहा था, उसको आपने ऑल हाई टाइम एक्सपोर्ट्स में पहुंचाया। 2532 करोड़ का आपने एक्सपोर्ट इंक्रीज किया, ऑल टाइम हाई किया। इसलिए जब मौका मिला आपने उसको भी पूरा किया। मैं अपने आप को बहुत महसूस करता हूं खुशनसीब कि जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, आप उसके तमिलनाडु के उस समय अध्यक्ष बने जब पार्टी चैलेंज के मोड में थी, जब पार्टी को आवश्यकता थी। और आपने जो बताया गया कि 19,000 किलोमीटर से ज्यादा आपने यात्रा की, लगभग 93 डेज की आपने यात्रा की। और उस यात्रा में आपने 2004 से 2007 के बीच में अध्यक्षता के साथ साथ पार्टी को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम आपने किया। और यही नहीं, एक नई ऊर्जा पार्टी को दी, नई ताकत दी। और जिन बातों को लेकर के आपने वो जो यात्रा निकाली थी, वो जॉइनिंग ऑफ रिवर्स था, अनटचेबिलिटी के खिलाफ था, सबको साथ लेकर के चलने के लिए था, यानी सामाजिक और नेशनल इश्यूज, यूनिफॉर्म सिविल कोड था। इन सारी बातों को लेकर के आपने उस यात्रा को निकाला और पार्टी को मजबूत किया। मुझे बहुत खुशी ये है कि आप 2020 से 2022 तक केरल के आप भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज भी रहे और आपने बखूबी पार्टी को वहां भी मजबूत किया। यू वेंट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट और मुझे वह भी देखने का मौका मिला आपने किस तरीके से एक डिसिप्लिन सोल्जर के रूप में आपने अपने काम को निभाया। आप जब झारखंड के राज्यपाल बने तो आपने कुछ ही समय में आपने 28 जिले घूम डाले। जब आप महाराष्ट्र के बने तो अभी प्रफुल्ल पटेल जी बता रहे थे कि विद इन 2 मंथ्स, हमारे मिलिंद देवरा जी भी बता रहे थे कि विद इन 2 मंथ्स यू विजिटेड ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट of Maharashtra, the same you did with Jharkhand. This shows your commitment for the society, this shows your administrative acumen also, and this shows your
कमिटमेंट फॉर द स्टेट्स वेलफेयर जो आपने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको उपराष्ट्रपति के लिए चुना, जिसको फिर सबने वोट के आधार पर आप उपराष्ट्रपति बने हैं। हम सब लोगों की उम्मीद ही नहीं, विश्वास है। वी हैव कंप्लीट फेथ इन यू एंड अंडर योर लीडरशिप निश्चित रूप से ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की का मंदिर है, टेम्पल है, उसका जो अपर हाउस है, उसको आप उसकी आप अध्यक्षता, उसको कंडक्ट आप बखूबी करेंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और इस बात को कहना चाहूँगा। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आज ये सारी बातें आपके पक्ष में, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हमने रखी हैं, लेकिन चर्चा करते करते बहुत सी बातें ऐसी भी हुई जिसमें कुछ लाइन से अलग हट करके भी कुछ बातों की चर्चा की गई है। और मैं जब कंक्लूड करता हूं तो मैं भी चाहूंगा कि कम से कम कुछ बातें ध्यान में लाई जाएं, क्योंकि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बहुत चर्चा हुई और सबने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपने अपने तरीके से उनके शब्दों का उपयोग किया है। तो मैं भी उन्हीं के शब्दों को उद्धृत करके कुछ बात कहना चाहता हूं, और वो बात ये कहना चाहता हूं that the house, in the house, we should be responsible members of the parliament, and we should behave as a responsible member of the parliament, not as irresponsible professional agitators in the house. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। So we should be responsible members of parliament and not irresponsible professional agitators. That we have to understand. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।